Okay, so this is a book again, a new one. फॉल्ट लाइंस मतलब ये नई मेरे पास नई नहीं है, ये आप लोगों के लिए मोस्ट लाइकली नई हुई, ये मैंने काफी पहले पढ़ी थी। फॉल्ट लाइंस बाय रघुराम राजन। रघुराम राजन को आप जानते ही होंगे। वो आरबीआई के गवर्नर थे शायद 2016 के पहले तक, 2013 से 16, इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो थोड़ा सा ये इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया था उसके ऊपर ही किताब लिखी थी, है ना। तो उस पर पढ़ते हैं थोड़ा सा। The financial collapse of 2007 and the recession that followed left many economists on the defensive. News programs, magazines, pundits, and even the Queen of England all asked some variant of the question: why didn't you see it coming? Some in the economics community wrote articles or convened conferences to examine how they could have gotten it so wrong. Others engaged in a full throated defense of their profession. For many who were hostile to the fundamental assumption of mainstream economics, the crisis was proof that they had been right all along. The emperor was finally shown to have no clothes. Public confidence in authority was badly shaken. ठीक है। तो जो 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2007-8 का बेसिकली, है ना, वो मोस्ट लाइकली आपको नहीं पता होगा, है ना। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छे से तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट उसमें ऐसा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स का क्राइसिस था। ठीक है। 1991 में, है ना। 1922 से 1992 तक सोवियत यूनियन चला था। उस बीच कोल्ड वॉर भी चला था रशिया और यूएसए के बीच में, और उसके बाद फिर, है ना, वो खत्म हो गया था सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद। और उसके बाद से यूएसए का एक अधिकार था, तो वहां से न्यू लिबरलिज्म, है ना, 1991 में से फिर चीजें बदली भी हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर टू 1945 47 1945 में जब खत्म हुआ था, तो बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल जो लैंडस्केप था दुनिया का वो बहुत बदला था। वैसे 1991 के बाद इकोनॉमिकल लैंडस्केप बहुत बदला था। उस प्रोसेस में क्या था कि बस पैसे डालते जाओ सिस्टम में, ग्रोथ होती चली जाएगी, ऐसा माना जा रहा था, है ना, जो कि 2007-8 आते आते, हाफ वे आते आते तक गलत साबित होने लगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गए थे, स्पेशली एशिया वगैरह के, और फिर उधर पीछे यूरोप वगैरह के भी। चलो, of course, it is incorrect to say that no one saw this crisis coming. Some hedge fund managers and traders in investment banks put their money instead of their mouths to work. A few government and Federal Reserve officials expressed deep concern. A number of economists, such as Kenneth Rogers, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, repeatedly sounded warnings about the levels of U.S. house prices and household indebtedness. Niall Ferguson, a historian, drew parallels to the past booms that ended poorly. The problem was not that no one warned about the dangers, it was that those who benefit from the overheated economy, which included a lot of people, had little incentive to listen. Critics were often written off as Cassandras or permabears. Predict a downturn long enough, the thinking went, and you would eventually be proved right. Much as a broken clock is correct twice a day, I know because I was one of those Cassandras. ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब ऐसा क्राइसिस हुआ था, जब उस समय, तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि भैया तुम लोग को पहले से दिखा नहीं रहा था कि ये होने वाला है, ऐसा वैसा, ऐसे कैसे हो गया अचानक से। उसका मेन रीजन ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लोग कह नहीं रहे थे, कह रहे थे, बट जिनको फायदा मिल रहा था इस पूरे सिनेरियो से, वो अपना हित में काम कर रहे थे, तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे। Every year, the world's top central bankers get together for 3 days at Jackson Hole, Wyoming, along with private sector analysts, economists, and financial journalists to debate a set of topical papers commissioned for the event by the host, the Federal Reserve Bank of Kansas City. Following each day's presentations, participants go on long hikes in the beautiful Grand Teton National Park, where amid the stunning mountain scenery, they talk central banker shop. Intense argument about the Vixelian rate of interest mingle with the sound of rushing streams. हाँ, तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स के बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स होती हैं, है ना, हर जगह पे, ताकि सेंट्रल बैंक्स तब वो आई थी अस्तित्व में बेसिकली हर देश में, मोस्ट ऑफ देशों में 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन रहा था उसको कवर अप करने के लिए, उस प्रोसेस में, क्योंकि भैया एक पॉइंट के बाद, है ना, इकोनॉमी कोलैप्स करने लगती है, तो वहां पे सरकार को हस्तक्षेप करना होता है, तो वहां पे आप इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू और फाइनेंशियल पॉलिसी के थ्रू, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, है ना, महंगाई को
कब्जे में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, जिससे फिर अर्थव्यवस्था ठीक चल रही होती है सबके लिए, सप्लायर एज वेल एज द डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड्स के लिए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि फिर सेंट्रल बैंक से जो जुड़े अधिकारी वगैरह थे वो अपना मिलते हैं और अपना ट्रक वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पे लंबी चौड़ी बातें होती हैं, इंटरेस्ट रेट कह रहा हूँ। 2005 जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी लास्ट फॉर द फेडरल रिजर्व, सारी बातें, and the theme therefore was the legacy of the Greenspan era. I was the chief economist at the IMF at that time, on leave from the University of Chicago, where I have taught banking and finance for the best part of 2 decades. तो 2 दशकों तक रघुराम राजन फाइनेंस और बैंकिंग पढ़ा रहे थे, बैंकिंग एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है, तो ये इतिहास रहता है हमारे आरबीआई के गवर्नर्स का, यूजली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। I was asked to present a paper on how the financial sector had evolved during Greenspan's term. The typical paper on the financial sector at that time described in breathless prose the dramatic expansion of financial markets around the world. It emphasized the wonders of securitization, which allowed a bank to package its risky housing or credit card loans together and sell claims on the package in the financial market. Securitization allowed a bank to get the risky loan off its books. At the same time, it allowed long term investors in the market, such as pension funds and insurance companies, to take on a small portion of the risky claims that they, by virtue of having longer horizons and holding a diverse portfolio of other assets, could hold more easily than the bank. In theory, with the risk better spread across sturdier shoulders, investors would demand a lower return for holding the risk, allowing the bank to charge lower loan rates and expand borrowers' access to finance. देखो, घुमा फिरा के जो बात कही गई, जो मुझे समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट्स का ग्रोथ हो गया, यानी कि शेयर मार्केट्स का ग्रोथ हुआ, यानी कि ज्यादा लोग अब शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हों, उस समय की बात बता 2007 की। बहुत सारे अलग अलग देशों में स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण हुआ होगा, जैसे कि मोस्ट लाइकली इंडिया में भी बॉम्बे है ना, बीएससी और निफ्टी और सेंसेक्स वगैरह। ये सब आज़ाद भी हुए थे एशियन देश 1945-46 के अराउंड, फिर इकोनॉमिक पॉलिसी उस प्रोसेस में उन्हें पैसे चाहिए ही थे, प्राइवेट सेक्टर वगैरह आज़ाद की बातें। तो बेसिक बात वो ये कह रहे हैं कि इसके क्रिएशन से फिर, है ना, हाँ, बैंक्स को थोड़ी सी मदद मिल रही थी अपने लोन्स देने में, लोन्स लोगों को देने में, क्योंकि वो रिस्क वो यहाँ पे ट्रांसफर कर पा रहे थे, है ना। अब ये मुद्दा जो है वो थोड़ा सा बैंकिंग और फाइनेंस का हो जाएगा, जो कि मेरा बहुत मजबूत सब्जेक्ट नहीं है एक सेंस में। तो घुमा फिरा के बात यही कही जा रही है कि शेयर मार्केट्स बहुत बढ़ गए थे, है ना, ओवरऑल दुनिया में। उस वो कहीं ना कहीं एक मात्रा में अल्टीमेटली एक रिजल्ट रहा, है ना, उतना सस्टेन नहीं कर सकता था मार्केट, बट लोगों को लग रहा था कि सस्टेन कर पाएगा, तो बढ़ रहे थे, तो कुछ रीजंस बताएं। अब इसके आगे हम लोग फिर आगे और कवर करेंगे इसको, अभी के लिए इतने में छोड़ देते हैं कि दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट जैसे संघाई में, है ना, और बैंक ऑफ यूएस में, यूरोप में, कहाँ कहाँ है स्टॉक मार्केट्स, सिंगापुर में, इंडिया में तो है ही है, उनको आप जानिए। और रुपी और करेंसी वगैरह तो होती है, तो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, फाइनेंस और बैंकिंग को फिर हम लोग थोड़ा सा सेंट्रलाइज करेंगे। ऑब्वियसली जब वो पढ़ाते थे 20 साल, तो उनकी कई सारी बातों में आएगा ही आएगा।